السلام علیکم، DNN نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا اور میں ہوں عابدہ خان۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ یکم مئی کا دن مزدوروں کے وقار کی علامت ہے۔ کم آمدنی والے مزدوروں کے لیے مزدور کا احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزدوروں کے عالمی دن پر مزدوروں کو احساس پروگرام کی خوشخبری سنا دی۔ یکم مئی مزدوروں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت بہتر ماحول، رہائش، تعلیم کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے اور حکومت مزدوروں، ان کے اہل خانہ کی صحت، کام اور بہتر رہائش کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کا مقصد کارکنان اور فلاحی اداروں کے لیے خودکار مربوط نظام بنانا ہے۔ آج کا دن ہمیں مزدوروں کی قربانیوں، بہادریوں اور عزم کی یاد دلاتا ہے۔ مزدوروں نے اپنے حقوق برقرار رکھنے اور کاروباری ماحول کے لیے جانیں نچھاور کی۔ یکم مئی ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ مزدور کی محنت کی شراکت داری کا اعتراف کریں۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مذہب سماجی انصاف کے اصولوں اور کارکنان کے حقوق کے احترام کی تاکید کرتا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل سعودی عرب میں پاکستانی مزدوروں کے ساتھ ناروا سلوک پر وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب میں تعینات سفیر کو سفارتی عملے سمیت واپس بلا کر ان کے خلاف تحقیقات اور مثالی سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی مزدور ہمارا اثاثہ ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہر ممکن کوشش کر کے مزدوروں کے مسائل حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ FBR نے رواں مالی سال کے 10 ماہ میں 14% زائد ٹیکس جمع کیا، جو قابل تحسین ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ FBR کا اپریل میں 57% ٹیکس نمو حاصل کرنا قابل تحسین ہے۔ FBR نے رواں سال اپریل میں 384 ارب ٹیکس وصولیاں کی، جبکہ گزشتہ مالی سال اپریل میں 240 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال جولائی تا اپریل 3780 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا۔ جولائی تا اپریل جمع شدہ ٹیکس گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 10 مہینوں سے 14% زائد ہے۔ مسلم لیگ نون کا بڑا قدم، این 249 کے ضمنی انتخابات میں ووٹس کا فورینسک آڈٹ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط کے مطابق این 249 کے انتخابی نتیجے پر نون لیگ کو سخت تحفظات ہیں کہ انتخاب کا نتیجہ 11 گھنٹے تاخیر سے آیا۔ خط میں درخواست کی گئی ہے کہ جن پولنگ اسٹیشن سے جاری فارم 45 پر شک ہے، ان کا فورینسک آڈٹ کروایا جائے۔ واضح رہے کہ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این 249 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل کامیاب ہوئے، جبکہ نون لیگ کے مفتاح اسماعیل دوسرے نمبر پر رہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دن بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز پر وار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا شوق ہے پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنا تو کرو اور ہارو، جبکہ مریم نواز نے بلاول بھٹو کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہار تب تسلیم کریں گے جب ہرایا تو جائے، شیر کا شکار کرنا آسان نہیں رہا۔ جان لیوا وبا کی پہلی قسم پر قابو پایا نہیں کہ نئی اقسام کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی مزید 2 نئی اقسام سامنے آئی ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی مزید 2 نئی اقسام سامنے آ گئی۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز نے کہا ہے کہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میں کیے گئے ٹیسٹ میں کورونا وائرس کی مزید 2 نئی اقسام سامنے آئی ہیں، جو کہ کورونا وائرس کی افریقن اور برازیلین اقسام ہیں۔ نیشنل ہیلتھ سروسز اور NCOC کورونا کی اقسام پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی کنٹیکٹ ٹریسنگ شروع کر دی گئی ہے۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز نے عوام سے کہا ہے کہ قطع نظر کون سی وائرس کی قسم سامنے آئی ہے، SOPs پر عمل میں تحفظ ہے۔ 40 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد ویکسین لگوائیں، ماسک پہننے کو یقینی بنائیں، گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلیں، سماجی فاصلے کو عملی طور پر یقینی بنائیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں سندھ انڈسٹریل رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی حکومت کی جانب سے صنعتی شعبے کو ممکنہ تعاون اور مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ اجلاس میں
वफाकी वजीर अली हैदर जैदी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदगान और कराची में सनती इलाकों की मुख्तलिफ एसोसिएशंस के सदूर ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ सनतकारों के ताउन और मुश्तरका काविशों से कौम को कोरोना वबाई अमराज की वजह से बढ़ती हुई बेरोजगारी, गुर्बत और कमजोर मईशत के संगीन चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की मौशी तरक्की के लिए सनती शोबा काफी अहमियत का हामिल है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती सनत के लिए जिन मराद का ऐलान किया गया है उससे न सिर्फ 30 से जायद वाबस्ता सनतों के चलने से मौशी सरगर्मी यकीनी होगी बल्कि मुल्क में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। उनका मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत सनती शोबे को सनतों की तरक्की में रुकावटों को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुमकिना ताउन और मदद जारी रखने की भी यकीन दहानी करवाती है। कराची में 4 मई को यौम अली पर जुलूस रिवायती अंदाज में निकालने की इजाजत दे दी गई। जुलूस के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साउथ ने जुलूस से मुतालिक तहरीरी अहकामात जारी कर दिए, जिसके तहत जुलूस के मकामात का तयन किया गया है, जबकि मरकजी जुलूस के इंतजामात से मुतालिक मशावरत कमिश्नर कराची के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में की गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस, रेंजर्स और शहरी इदारों के सीनियर अफसरान शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि जुलूस के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करवाया जाएगा। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब के ज़ेरे एहतमाम पुरतकल्लुफ़ अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें सियासी जमातों और फोरम के जिम्मेदारान, कम्युनिटी अरकान और डॉक्टर्स ने शिरकत की और कोरोना से बचाव के लिए आगाही फराहम की। मज़ीद तफसीलात के लिए जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। डिनर की सदारत चेयरमैन पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम जहांगीर खान ने की, जबकि अफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ सऊदी सहाफ़ी सुमेरा अजीज, सदर पाक मीडिया फहद रफीक खोखर, जनरल सेक्रेटरी इदरीस अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कम्युनिटी के साथ थोड़ा खला बन गया था, जिसको पुर करने के लिए आज हमने आप सबको मदऊ किया और हम मशकूर हैं। आप तमाम अहबाब के आप लोग तशरीफ लाए और फिर से मिल बैठे। तकरीब से डॉक्टर अरशदुल्ला ने हाजरीन को कोरोना से बचाव से मुतालिक आगाह किया। तकरीब में कम्युनिटी के नुमाया शख्सियात राना रिजवान अकबर, चौधरी मोहम्मद अमजद गुजर, चौधरी अजहर अब्बास बड़ाई, चौधरी अकरम गुजर, कैसर जावेद, रियाज शाहीन आफरीदी, आरिफ चिद्धड़, मियां रिजवान उल हक, बशीर खान सवाती, चौधरी अब्बास, राना वसीम रजा, डॉक्टर सोमिया ताजोर, डॉक्टर शाहिद खान, डॉक्टर सुमैया ने शिरकत की और सब ने पाक मीडिया की सहाफ़ती खिदमत की तारीफ की। तकरीब में जुमर्द खान सैफी ने अपनी सुरीली आवाज़ में हदिया नात मकबूल पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए और आखिर में चेयरमैन पाक मीडिया ने तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से कस्टम हुक्काम को स्मगलिंग की रोकथाम में ताउन फराहम करने के लिए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जिला जैकबाबाद में सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पर वाक़े अब्दुल जब्बार शहीद चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जिला जैकबाबाद में सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़े अब्दुल जब्बार शहीद चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके दौरान नॉन कस्टम पेड अशिया की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। नॉन कस्टम पेड अशिया की मालियत तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसमें शामिल पान कत्था 41 किलोग्राम, छालिया 20 किलोग्राम, गुटखा 50 अदद पैकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर 48 अदद, ईरानी एयरगन प्लेट्स 40 कार्टन, चैन रिक्शा और मोटरसाइकिल 2620 अदद, वेल्डिंग रॉड्स 28 कार्टन, टायर्स 29 अदद, सिगरेट 80 अदद पैकेट्स और चाइना नमक 15 अदद बैग्स हैं। बरामद शुदा सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर हंगू मोहम्मद अरशद आफरीदी की कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से जारी करदा एहतियाती तदाबीर और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर हंगू हमीदुल्ला शाह की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद आफरीदी ने अचानक टल बाजार का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं निसार बंगश की इस रिपोर्ट में।
हंगू में 7 दुकानदारों को एहतियाती तदाबीर और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक दुकानदार के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत पर थाना टल में FIR दर्ज कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद आफरीदी का कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर हंगू हमीदुल्ला शाह की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद आफरीदी ने टल बाजार का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना करते हुए ग्राहक फरोशी और सरकारी निर्खनामे की अदम मौजूदगी पर बेशतर दुकानदारों को मौके पर ही जुर्माना किया गया, जबकि एक कबाब फरोश की दुकान को सील कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद आफरीदी ने कहा कि कोरोना वबा से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल करना है। अवाम SOPs का ख्याल रखकर फेस मास्क का इस्तेमाल करें और बिला जरूरत घरों से ना निकलें। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी है और इस सिलसिले में दफा 144 का निफाज कर दिया गया। उन्होंने अवाम से SOPs पर अमल करने और कोरोना की मोहलिक वबा की रोकथाम में हुकूमती इदारों के साथ ताउन की अपील भी की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब रावलपिंडी डिवीजन हारून अहमद का कहना है कि पंजाब में काश्तकारों को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी को यकीनी बनाने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं आमिर अब्बासी की रिपोर्ट में। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राए इत्तलात का कहना है कि इस तारीखी इकदाम के जरिए काश्तकार खाद और बीज रियायती कीमत पर हासिल कर सकेंगे और किसान कार्ड को इस्तेमाल करके किसान फौरी कैश हासिल कर सकेगा। उनका मजीद कहना था कि किसान कार्ड के तहत काश्तकार फसल बीमा, तकफ़ुल, ई-क्रेडिट और ज़राई मुदाखिल की तमाम सब्सिडी हासिल कर सकेंगे और कार्ड को बतौर ATM कार्ड इस्तेमाल करते हुए सब्सिडी की रकम को फौरी वसूल करके बर वक्त ज़राई मुदाखिल की खरीद को बर वक्त अमूर काश्तकारी और तहफ़्फ़ुज़ नबातात को यकीनी बना सकेंगे, जिससे फी एकड़ ज़राई पैदावार में इजाफा और पैदावारी हदफ का हसूल मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि काश्तकारों के किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की खातिर महकमा ज़राअत, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, नादरा और ब्रांच लेस बैंकिंग ऑपरेटर्स एक मरबूत निजाम के तहत मिलकर काम कर रहे हैं। रजिस्टर्ड काश्तकार किसान कार्ड के हसूल के लिए कनेक्ट HBL की दुकान पर अपना अकाउंट खुलवाएं और 500 रुपए काबिल वापसी अदा करके अंगूठा जरूर लगवाएं। काश्तकार मुताल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के दफ्तर से इत्तला मौसूल होने पर किसान कार्ड वसूल करें और उसकी एक्टिवेशन करवाएं, जबकि गैर रजिस्टर्ड काश्तकार मुताल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस किसान कार्ड का मकसद ये है कि काश्तकार डायरेक्ट जो है वो हुकूमती सब्सिडी से फ़ायदा उठा सके। अब उनको किसी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ से भी ख़रीदारी करेंगे ज़राई मुदाखिल की या कोई और, तो वो जो है अपना कार्ड इस्तेमाल करके उस पर रहती कीमत पा लेंगे। इसके अलावा जितनी किस्म की सब्सिडीज़ हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जाएंगी वो इसके ज़रिए डायरेक्ट हासिल की जा सकती हैं। और इस वक्त अगर काश्तकारों को चाहिए कि जो जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो HBL कनेक्ट शॉप पे जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट खुलाएं और किसान कार्ड के लिए अप्लाई करें। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 10 दिन से जारी बल्दिया मुलाजिमीन की हड़ताल के बाइस शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। शहर में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए, जिससे शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फराबाद के बल्दिया मुलाजिमीन अपने मुतालिबात के हक में गुज़िश्ता 10 दिन से धरना दिए बैठे हैं, जिससे शहर की सफाई का काम मुअत्तल हो गया है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहर में पड़े गंदगी के ढेर से मुख्तलिफ वबाएं भी जन्म लेने लगी, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत आज़ाद कश्मीर बल्दिया मुलाजमीन के एहतजाज को संजीदा नहीं ले रही। शहरी हलकों ने हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द बल्दिया मुलाजमीन के मुतालिबात को तस्लीम करके उनकी तनख्वाहों और पेंशन के मामलात को हल किया जाए, ताकि उन्हें इस परेशानी से निजात दिलाई जा सके। शेखपुरा से आपको खबर दें, आपको बताएं कि शेखपुरा में ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के ज़ेरे एहतमाम जिला कौंसल शेखपुरा हॉल में सैनिटरी पेट्रोल मुलाजमीन की सर्विस को रेगुलर करने के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत CEO हेल्थ डॉक्टर अशरफुल राय ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए जिला सदर ग्रैंड अलायंस सैयद ताहिर शाह ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया और CEO हेल्थ के बहुत मशकूर
मशहूर हैं, जिन्होंने सैनिटरी पेट्रोल मुलाजमिन की सर्विस को रेगुलर करके इंसान दोस्त होने का सबूत दिया। तकरीब के दौरान सैनिटरी पेट्रोल मुलाजमिन ने CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ राय और DHO डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो कि तकरीब के मेहमान खसूसी थे, समेत दीगर मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और गुलदस्ते भी पेश किए। जबकि CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ राय ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुलाजमीन में तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ राय और ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के सदर सैयद ताहिर शाह का कहना था, जो डेंगू प्रोग्राम में सैनिटरी पेट्रोल भर्ती हुए थे उनकी तादाद है 356। ये अरसा दराज से ये अदालतों में जा रहे थे, इधर उधर मुख्तलिफ फोरम्स पे जा रहे थे कि हमें 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, लिहाजा हमें रेगुलर किया जाए। लिहाजा मैंने आते ही इनका केस टेकअप किया है। मैंने कहा जिसका हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए। मुल्क भर की तरह बुरेवाला विहाड़ी में भी यौम मजदूर के हवाले से म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसकी सदारत सैयद फरहत अली शाह और याकूब वाहला और काशिफ गौरी ने की। मज़ीद तफसीलात रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। 1 मई को मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और पूरे मुल्क में मज़दूरों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है। इसी हवाले से बुरेवाला विहाड़ी में भी म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन के ज़ेर एहतमाम मज़दूरों के हक़ में रैली निकाली गई, जिसकी सदारत सैयद फरहत अली शाह, जनरल सेक्रेटरी याकूब वाहला और काशिफ गौरी ने की। महंगाई के इस दौर में एक मज़दूर अपनी यौमिया उजरत 600 रुपये में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। इस हवाले से मज़दूरों का कहना है कि हमें पहले भी पूरी उजरत नहीं मिलती थी और अब कोरोना की वजह से काम बंद होने से मजीद बेरोजगारी में इजाफा हो गया है। मजदूरों ने मौजूदा हुकूमत से मजदूरों के लिए ईद पैकेज और रिलीफ फंड्स कायम करने का मुतालबा किया है। मजदूर डे है जी, लेकिन साडे वाल कोई तवज्जो नहीं कर रहा जी। कोई सानू पैकेज नहीं मिल रहा, कोई ईद पैकेज नहीं मिल रहा। असी मजदूर की करिए, साडी मजदूरी नहीं लगती। कोई कोरोना की वजह बन गई, कोई रमज़ान शरीफ आ गई, काम वाले घट आते हैं, वो ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ 120-25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ 600 ਤੇ ही। और यहाँ पर आपको बताएं कि यूनान में कई माह से जारी लॉकडाउन में नरमी के बाद रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में एथेंस में पहली सरकारी जामा मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल दिया गया। मियां सफ्दर की रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे यूरोप में यह वाहिद सरकारी मस्जिद है जिसके अखराजात हुकूमत यूनान बर्दाश्त कर रही है। मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर महदूद पैमाने पर नमाज जुमा अदा की गई, जबकि इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और इत्तफाक और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नमाज जुमा अदा करने के बाद DNN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी के अकाबरीन ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि काफी महीनों बाद एथेंस की सरकारी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा किया गया और उम्मीद है कि अगले हफ्ते यूनान में लॉकडाउन में मजीद नरमी भी हो जाएगी और हम जुम्मा और नमाज ईद के बड़े इत्तमाम कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम यूनानी हुकूमत के भी मशकूर हैं कि मस्जिद में हमें हर सहूलत फराहम की गई है। यूनान में थोड़ी सी लॉकडाउन में नरमी की वजह से आज नमाज जुमा का एहतमाम सरकारी जामिया मस्जिद एथेंस में किया गया और इसमें मस्जिद के अंदर 12 आदमियों की इजाज़त थी और मस्जिद से बाहर जो बहुत बड़ा सहन है वहाँ पर 100 आदमियों ने नमाज अदा की। इस तरह हम हुकूमत यूनान का शुक्रिया अदा करते हैं, बिलखसूस वजारत मजहबी अमूर का और उसमें मिस्टर योर्गो कालांजिस का, जिनकी अनथक मेहनतों से ये सरकारी मस्जिद जो है वो मुसलमानों को तोहफा के तौर पर दी गई है। और ये एक बड़ी बात है कि पूरे यूरोप में ये वाहिद यूनान ऐसा मुल्क है जिसमें हुकूमत ने अपने खर्चे से मस्जिद बनाकर मुसलमानों को इबादत के लिए ये जगह दी है। और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। फवाद आलम ने कैरियर की इब्तिदाई 4 50s को सेंचुरीज में तब्दील करने का 55 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तानी बैट्समैन ने गुज़िश्ता रोज़ जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे टेस्ट में कैरियर की 4थी सेंचुरी बनाई। ये चौथा मौका था जब उन्होंने 50 रन्स मुकम्मल करने के बाद इसे 3 फिगर इनिंग्स में तब्दील किया। यूं अभी तक फवाद ने कोई 50 नहीं बनाई। याद रहे कि फवाद आलम 10 साल और 259 दिनों के तवील और सब्र आजमा इंतजार के बाद कौमी टीम में वापस आए थे। इस दौरान 40 नए क्रिकेटर्स को टेस्ट कैप्स दी गईं। दूसरी जानिब फवाद
बाद आलम डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाते रहे। उन्होंने 56.68 की औसत से 7,965 रन्स बनाए, उनमें 26 सेंचुरीज और 33 50s शामिल हैं। और अब DNN एंटरटेनमेंट शाहिद अली खान की रिपोर्ट देख लेते हैं। अदाकारा आयशा उमर कैम्ब्रिज इम्तिहानात के मामले पर तलबा की जानिब से वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के खिलाफ नामुनासिब ज़बान के इस्तेमाल पर मैदान में आ गई। चंद हफ्तों से सोशल मीडिया पर कैम्ब्रिज इम्तिहानात मनसूख करवाने के लिए मुहिम चलाई जा रही थी। इस हवाले से आवाज उठाने वालों में वकार ज़का और समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर के अलावा गुलकार आसिम अजहर समेत कई मारूफ सेलिब्रिटीज भी शामिल रही। हाल ही में निजी टीवी के प्रोग्राम में ट्विटर ट्रेंड्स के हवाले से बात करते हुए शफकत महमूद ने तलबा की जानिब से अपनाए जाने वाले रवैये पर अफसोस और मायूसी का इजहार किया। वफाकी वजीर तालीम का कहना था कि जिस किस्म की जबान तलबा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी हुकूमत, वालिदैन और असातिज़ा की इज्तिमाई नाकामी है। 16-17 साल के बच्चे जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुनकर भी शर्म आती है। इसी हवाले से समाजी राब्तों की साइट ट्विटर पर इजहार ख्याल करते हुए आयशा ने लिखा कि अजीज तलबा, तनकीद या इख्तलाफ राय का मतलब ये नहीं कि आप किसी की तज़हीक करें, आप अपना नुक्ता नज़र तमीज के साथ भी बयान कर सकते हैं। आयशा उमर ने मजीद लिखा कि परेशान कुन हालात में जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करें, ये हमारे और दूसरों के लिए बेहतर है। ट्वीट के अलावा आयशा ने इंस्टा स्टोरीज में भी स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा कि ये शर्मनाक है कि हम ऐसी कौम पर वान चढ़ा रहे हैं जो बड़ों का बिल्कुल एहतराम नहीं करते। किसी से इत्तफाक न करने का मतलब ये नहीं कि आप तजलील या तज़हीक करें। हमें बहुत सी चीज़ों पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अदाकारा ने वालिदैन को भी तजवीज़ दी कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। इस हवाले से निगरानी किए जाने का वक्त आ गया है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।